This call is now being recorded. Okay, so we are going to start the new topic, that is drug acting on ANS. In previous topic, we had seen drug acting on CNS, central nervous system. Now, in this topic, we are going to see the drug acting on autonomic nervous system. So first, we are going to see what is exactly the autonomic nervous system and what is the physiology and functioning of this autonomic nervous system. So first, we see this is actually the classification of the nervous system, central nervous system and the peripheral nervous system, PNS. Central nervous system located centrally, which include the brain and a spinal cord, whereas peripheral nervous system, peripheral nervous system located peripherally, not located centrally. So that is located outside the brain and spinal cord, and that we call PNS, peripheral nervous system. So amongst these, central nervous system का जो part है वो हम लोग already देख चुके हैं, we had covered. Now we are moving toward the next, peripheral nervous system. Amongst these peripheral nervous system, there are two parts of this peripheral nervous system, that is autonomic nervous system and somatic nervous system. ANS and SNS, that is somatic nervous system. So amongst these, we have to focus on autonomic nervous system. That is our topic of interest, ANS, autonomic nervous system, which is a part of peripheral nervous system. Okay. Now exactly अगर देखा जाए, the part of nervous system, now this is actually the definition for autonomic nervous system, the part of nervous system which control the activity of involuntary organs like heart, blood vessels, bronchioles, smooth muscles, is known as autonomic nervous system. जो automatically जो visceral organs की activities है उसको control करती है, that we call autonomic nervous system, and definitely it will be not under the control of willpower. आई थिंक सो ये पीएनटी में आपका टॉपिक हो गया होगा, एएनएस के बारे में आपने पीएनटी में पढ़ा है या मे बी एचपी में पढ़ा होगा. प्लीज एनीवन रिप्लाई. ये हो गया है टॉपिक एएनएस. सर एचपी में हुआ है शायद. अच्छा, या पीएनटी में नहीं स्टार्ट हुआ है अभी. ओके ठीक है, चलो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम लोग देख रहे हैं. दिस इज द से ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड सिस्टम वी कॉल, ठीक है, विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल पावर. ऑटोमेटिकली इसलिए ऑटोनॉमिक इसका नाम दिया गया है, विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ विसरल ऑर्गन सच एज हार्ट है, लाइक ब्रोंकियल्स है, ब्लड वेसल्स है. इसका जो भी कॉन्स्ट्रिक्शन है, रिलैक्सेशन एक्टिविटी बढ़ती है, कम होती है, ये हम लोग हमारे इट्स नॉट कंट्रोल ऑफ आवर विल पावर, इट इज कंट्रोल बाय ऑटोमेटेड सिस्टम दैट वी कॉल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, दैट वी कॉल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, चलो नेक्स्ट जो स्लाइड में आपको ट्री फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. नर्वस सिस्टम की हम लोग अगर बात करें तो देयर विल बी से two main parts of this nervous system. Centrally located, that we call central nervous system, which includes the brain and spinal cord. And next जो part होता है वो peripheral nervous system होता है, which is located peripherally. Centrally located है, as you can see in the image, centrally located central nervous system, peripherally located peripheral nervous system. Peripheral nervous system के फिर दो part रहेंगे, somatic nervous system and the autonomic nervous system. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हैं, या दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर इंटरेस्ट, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, which will be divided into two parts, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. ठीक है, somatic का नहीं देखेंगे. somatic actually related with the skeletal muscle and it is actually the control of willpower, under the control of willpower, somatic. but ये somatic वाला part यहाँ पे हमको नहीं देखना है. autonomic या automatic जो operate करता है, autonomous जो operate करता है, that autonomic nervous system that we have to see. इसके दो part है, sympathetic and parasympathetic. sympathetic is called as adrenergic system, parasympathetic is called as cholinergic system. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम. मेजर एक्टिवेटेड, मेजर अगोनिस्ट, मेजर न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन है, इसलिए इसको एड्रेनर्जिक सिस्टम बोला जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम को. whereas in parasympathetic system the cholinergic, it's called as cholinergic because the acetylcholine is a major neurotransmitter in a parasympathetic system. Major agonist है, major neurotransmitter है acetylcholine, that's why parasympathetic nervous system is called as cholinergic nervous system. So this is the classification and we have to focus on this autonomic nervous system, sympathetic and parasympathetic. ये अभी यहाँ पे हमको
टॉपिक वाइज फोकस करना है। जैसे हमने ड्रग एक्टिंग और सीएनएस पे देखा था, सीएनएस स्टिमुलेंट, सीएनएस डिप्रेसेंट। फिर सीएनएस डिप्रेसेंट में वेरियस टॉपिक्स थे, जनरल एनेस्थेटिक्स, एंटी कन्वल्जेंट, एंटी एपिलेप्टिक, देन ट्रैंकुलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, ये सारे ड्रग एक्टिंग और सीएनएस थे, पर्टिकुलरली सीएनएस डिप्रेसेंट थे। सीएनएस स्टिमुलेंट वाज अ सिंगल टॉपिक दैट वी कॉल एनालिप्टिक्स। यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कैटेगरी वाइज ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस। तो देयर विल बी 4 टाइप्स ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस। दो रहेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम पे एक्ट करने वाले या एड्रेनर्जिक सिस्टम पे एक्ट करने वाले, एंड टू कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स आर व्हिच आर एक्टिंग ऑन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और कोलिनर्जिक सिस्टम। तो डिपेंडिंग करता है, एक रहेगा अगोनिस्ट, दूसरा रहेगा एंटागोनिस्ट। सिंपैथेटिक के लिए अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, पैरासिम्पैथेटिक के लिए भी अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। तो इस हिसाब से टोटल 4 टॉपिक ये एएनएस में इंक्लूड होते हैं। So this is again the same way of classification of the nervous system, centrally located and peripherally located. Peripheral में फिर somatic, which control the skeletal muscles, which control the contraction relaxation of skeletal muscle, that we call a somatic nervous system. और autonomic nervous system will regulate the functions of gland, blood vessels, internal जो visceral organs होते हैं उसके सब जो automated system काम करेगा, which will control the activity of these visceral organs, we call autonomic nervous system. ठीक है, तो ऑटोनॉमिक में हमने देखा, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम, व्हिच कंट्रोल दी, व्हिच मोबिलाइज द बॉडी एंड एक्शंस एंड एनर्जी आउटपुट। चलो ठीक है, ये एग्जैक्टली हम लोग डिटेल में देखेंगे व्हिच आर द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स इन एड्रेनर्जिक सिस्टम एंड वेयर दे आर लोकेटेड एंड हाउ दे आर फंक्शनिंग, हाउ दे आर एक्टिंग, व्हिच आर द एक्शंस associated with the stimulation and inhibition of the receptors or interaction with the receptor, when the agonist being interacting with the receptor and antagonist is interacting with the receptor. ये आप लोग देखेंगे टॉपिक वाइज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। The next parasympathetic nervous system is also called as cholinergic system, which conserve the energy and maintain। चलो ठीक है, इसके ये तो जनरल क्लासिफिकेशन हो गया। This is the general classification of the nervous system, and we are going to we are getting clarified that what topic we have to focus, that is ANS, autonomic nervous system. ANS act on the smooth muscle and the glands, definitely, just we had explained, and which control and regulate the actions of heart, respiratory system, GI tract, bladder, particularly urinary bladder, eyes and the glands. ये सारे को activity ANS control करता है, and it is involuntary. It is not control the under the control of willpower. which include again ANS पे ये हो गया एक पार्ट, somatic which is voluntary and which has particularly related with the skeletal muscles, ठीक है, जो कि voluntary होता है, under the control of willpower होता है, somatic, and mostly that is related with the skeletal muscle, जिसको हम लोग somatic बोलते हैं, ठीक है। now we are going to see exactly the ANS। अभी हम लोग ANS पे ही फोकस कर रहे हैं, autonomic nervous system, ठीक है। so autonomic nervous system has a two set of neuron. Definitely these are the types of neuron that we call afferent neurons and efferent neurons. Afferent neurons we are calling sensory neurons. Afferent neurons को हम लोग sensory neurons बोलते हैं, which send the impulses to the CNS for interaction। मतलब which जो है वो afferent neuron that we call a sensory neuron, which sends impulses to the CNS for the interruption या interpretation, that we call sensory neuron। मतलब टारगेट ऑर्गन से ब्रेन को जो इंपल्सेस जाते हैं और which the neurons that carries the impulses that we call as sensory neurons। and efferent neuron that we call a motor neurons, ठीक है, motor, sensory and motor, afferent and efferent। तो ये हम लोग सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं, efferent, which receives impulses from brain and the spinal cord and which transmitted to the effector organs or cell या target cell, target organ तक वो जो है वो impulses या receptor impulses या signals transmit करता है from brain to the target organ, that we call efferent type of neuron, and that we call a motor neuron also। sensory and motor, afferent and efferent, ये आपको पता है, these are the basics of the nervous system and will have the same constituent for the ANS also। ANS के लिए भी वही same रहेगा, sensory and motor neurons। now अभी just हमने जो ANS, autonomic nervous system, which will be divided into two parts, sympathetic and the parasympathetic, sympathetic system and parasympathetic nervous system। so what exactly
हेलो, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है, प्लीज जस्ट वेट फॉर 1 or 2 minutes. ओके, ये थोड़ा पीसी के कनेक्शन का इश्यूज हो रहे हैं, सो आई try to present from this phone. Am I audible clearly? Yes, sir. ओके, चलो मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ. अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर अभी. हाँ, अभी दिख रहा है. ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे दैट इज ऑफ दी नर्वस सिस्टम. उसमें हम लोग देख रहे थे टेबुलर फॉर्म में. ठीक, टेबुलर ये व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिमुलेशन ऑफ दी सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स या सिंपैथेटिक. अभी ये सिमुलेशन कब होगा? ठीक है, सिमुलेशन ये इन शॉर्ट सिमुलेशन कब होगा? अगोनिस्ट विद द रिसेप्टर, या अगोनिस्ट का लेवल बढ़ेगा इन सिंपैथेटिक सिस्टम, सो इन दैट केस सिचुएशन ऑफ सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स. जैसे कि एड्रेनालिन इसमें प्रेजेंट है, तो इन दैट केस देयर विल बी अ से देयर विल बी ऑफ द सिंपैथेटिक. और अगर कोलिनर्जिक या एसिडिक is a major neurotransmitter which is in motor state, there is a stimulation of parasympathetic response. Okay.
ओके हमारे प्रेजेंट। हेलो सर, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो सर, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हेलो। यस सर, अभी आ रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तीनों कॉलम की बात कर रहे थे। ऑर्गन टाइप कौन सा है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। बात कर रहे थे ऑर्गन टाइप कौन सा है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। इसका माइक ऑन है, प्लीज जरा म्यूट करो। सर, आपके दो माइक ऑन है। ओ ओके, नाउ इट इज ओके। यस सर, ओके। ठीक है, तो स्टिमुलेशन कब होता है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब एड्रेनालिन प्रेजेंट रहेगा, और एड्रेनालिन इज प्रेजेंट इन एक्सटेंट फॉर स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक। और कोलिनर्जिक के लिए जो होता है वो एसिलकोलिन प्रेजेंट होता है। एसिलकोलिन विल स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, कोलिनर्जिक सिस्टम। ठीक है, अभी स्टिमुलेट होने के बाद में क्या रिस्पांस मिलेगा? जैसे फर्स्ट जो ऑर्गन हम लोग देख रहे हैं, आई, आई के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? स्टिमुलेशन ऑफ एड्रेनर्जिक सिस्टम, इट विल डायलेट द पिपिल। और ये समझ के लोग के ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। वी कैन से दैट दे विल बैलेंस ईच अदर, और either of them, either there is a stimulation of sympathetic or there is a stimulation of parasympathetic। दोनों में से कोई एक ही स्टिमुलेट होता है जब जरूरत होती है। thereby they are balancing all the system। समझ में आ रहा है क्या? जैसे कि जहां पे डायल्यूशन की जरूरत है तो सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा, जहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपिल्स की जरूरत है वहां पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा। समझ में आ रहा है? दैट thereby the ANS is regulating all the system। या ये जो पर्टिकुलरली जो डायलेशन ऑफ पिपिल्स एक्टिविटी है, ये अगर कंट्रोल करना है तो एज डिजायर्ड, जैसा चाहिए, जैसे अगर डायलेट होना है तो इन दैट केस सिंपैथेटिक सिस्टम या एड्रेनर्जिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा, और जहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन की जरूरत है तो वहां पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा। स्टिमुलेट कैसे होगा? बाय द एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन, बाय द एक्शन ऑफ एड्रेनालिन। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द वे बाय विच द स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। एक ऑर्गन के ऊपर हमने इफेक्ट दिखा, डायलेशन ऑफ पिपिल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपिल्स, ये आई के ऊपर इफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट लंग्स के ऊपर अगर सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाइज गेट डायलेटेड। और अगर सपोज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई। नॉर्मली एग्जैक्टली अपोजिट एक्शन रहेगा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का स्टिमुलेशन का ऑन दैट पर्टिकुलर टिश्यूज और दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। ये ध्यान में रखो थोड़ा बहुत। या मोस्ट ऑफ एग्जैक्टली एन अपोजिट इफेक्ट विल बी देयर। कहीं डायलेट होगा तो कहीं पे मतलब सेकंड वे में कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। अगर ब्रोंका डायलेट होते एड्रेनर्जिक से तो कोलिनर्जिक से वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। इस हिसाब से हार्ट के ऊपर जैसे अगर देखो तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होता है? इंक्रीज हार्ट रेट, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में डिक्रीज हार्ट रेट। ब्लड वेसल्स का क्या इफेक्ट होगा? ब्लड वेसल्स के ऊपर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स बाय स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। एंड यहाँ पे क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। इस हिसाब से इफेक्ट रहेगी। लाइक जीए ट्रैक में अगर देखा जाए तो रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल एंड इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक, मतलब इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक। ब्लैडर के ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर रिलैक्स द ब्लैडर मसल्स, एंड यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लैडर मसल्स। ब्लैडर मसल रिलैक्स होते हैं तो वहां पे हो जाएगा कि देयर विल बी से यूरिनेशन मिचुरेशन हो सकता है, वो या ध्यान रहेगा उसकी एक्टिविटी का। नेक्स्ट यूटेरस के ऊपर, अभी यूटेरस और नीचे जो सलाइवरी ग्लैंड है यहाँ पर जो है उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत अनकॉमन होता है। बाकी जगह तो एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा, लेकिन यूटेरस के ऊपर ओनली द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ यूटेराइन मसल। और सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर ओनली द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, दैट इंक्रीजेस द सलाइवेशन, दैट विल इंक्रीजेस द सलाइवेशन। तो ये जो है लास्ट के टू इफेक्ट जो है वो इंडिविजुअल है
मतलब अगर हम लोग बोले कि यूटेरस के ऊपर ज्यादा पैरासिम्पैथेटिक का कोई इफेक्ट नहीं है और सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर सिंपैथेटिक का कोई इफेक्ट नहीं है, मेजरली पैरासिम्पैथेटिक का ही इफेक्ट है। अभी इसको अगर हम लोग कोरिलेट करें, कोरिलेट करने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि अगर सपोज किसके बॉडी में एक्टिविटी चलेगी, ठीक है, किसके बॉडी में ये एक्टिविटी चलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, या वेयर विच दीज स्टिमुलेशंस आर रिक्वायर्ड, या जहां पे ये पर्टिकुलरली स्टिमुलेशन चलते हैं वो उसका एग्जांपल क्या है। तो उसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, हम लोग टू पर्सनालिटीज यहां पे लेंगे। एक जो है पर्सन दैट इज दी थीफ, जो कि चोर है और वो चोरी कर रहा है और चोरी करके भाग रहा है और उसके पीछे पुलिस पड़ी है। तो एक जो पर्सनालिटी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, जो कि चोर है, उसने चोरी किया है और उसके पीछे पुलिस पड़ी है और वो भाग रहा है, ठीक है, ये एक पर्सनालिटी है। और दूसरा जो पर्सनालिटी है वो फॉर एग्जाम्पल लेट मी कंसिडर वन ऑफ द एग्जाम्पल कि सेकंड ईयर डिप्लोमा फार्मेसी का स्टूडेंट है और वो ऑनलाइन अटेंड कर रहा है लेक्चर्स, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड पर्सनालिटी। डोंट बी कोरिलेट विथ एनी ऑफ द पर्सन, ठीक है, एनी ऑफ स्टूडेंट जो भी है, कोई स्टूडेंट इससे अपने को कोरिलेट ना करे, ये जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि क्या सिचुएशन रहेगी। तो दो पर्सनालिटी की हमने बात की, एक था चोर और दूसरा स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहा है मस्त बैठ के, रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स, उसकी हम लोग बात करें, दैट इज द सेकंड पर्सनालिटी, ठीक है। तो अभी जो चोर है उसके बॉडी में देयर इज अ स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक रिस्पांस। पहला जो सिंपैथेटिक रिस्पांस है वो स्टिमुलेट रहेगा इनटू द बॉडी ऑफ thief, sorry, who done a theft and running or which is being followed by the police, समझ आ रहा है। तो उसके बॉडी में ये सारी एक्टिविटीज होंगी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होने की, ये उससे हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट बैठा है आराम से घर पे ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहा है, उसके बॉडी में ये वाले पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के वाले जो इफेक्ट है वो कोरिलेट होंगे या वो इफेक्ट चल रहे होंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज स्टिमुलेटेड इन दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, ठीक है। अभी कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आईज जो है वो पिपिल डायलेट होंगे, चोर के जो ये है थीफ जो है उसके पिपिल डायलेट होंगे। क्यों डायलेट होंगे? क्योंकि उसको रास्ता देखना है भागने के लिए, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो कम रास्ता दिखेगा, साइज ऑफ पिपिल विल गेट डिक्रीज इन केस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपिल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, डायलेशन की जरूरत है, उसको अच्छे से आंख खोल के भागना पड़ेगा, दैट डायलेशन ऑफ पिपिल्स इज नीडेड इन दैट केस। दूसरा, वरएज यहाँ पे देखिए पैरासिम्पैथेटिक में स्टूडेंट के केस में क्या होगा, पिपिल में डायल्यूट हो गए, अपने आप उसको नींद आने लगेंगी, मस्त ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, देख रहा है, मस्त सुन रहा है, वो पता नहीं सुनते सुनते सो भी जाएगा, मालूम नहीं, ठीक है, बिकॉज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल इज देयर, पीपल का साइज कम कम होता जाएगा और उसको नींद भी आ जाएगी, ऐसे भी हो सकता है, बिकॉज कंप्लीटली रिलैक्स। नेक्स्ट, लंग्स की बात अगर हम लोग करें, लंग्स के ऊपर जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का इफेक्ट है, डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई, मतलब वो भाग रहा है, उसकी सांस फूल रही, तो डेफिनेटली डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई विल बी देयर, रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल गेट इंक्रीज एंड देयर इज अ डायलेशन। और यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट के केस में कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई एंड इंक्रीज सिक्रीशंस, मस्त बैठा है रिलैक्स, तो कोई बात नहीं, रेस्पिरेटरी रेट एकदम नॉर्मल रहेगा, हो सकता है थोड़ा कम कम भी हो जाए, respiration rate of respiration is going to be decreased and maybe he is completely relaxed, ठीक है। तीसरा, हार्ट के ऊपर, चोर के बॉडी में क्या होगा, इट इंक्रीज इन द हार्ट रेट, अभी भाग रहा है तो डेफिनेटली हार्ट बीट तो बढ़ी जाएगी, ऊपर से पुलिस भी पीछे पड़ी है तो डेफिनेटली हार्ट बीट तो बढ़ने वाला है। और यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इन द हार्ट रेट, मतलब नॉर्मल है, उससे भी अगर सो गया तो वो भी कम हो सकता है मे भी कोमा में भी जा सकता है पार्ट ऑफ जोका, ठीक है। तो ये स्टूडेंट जो रिलैक्स बैठा है उसके बॉडी में एक्टिविटी चलेंगे, डिक्रीज इन द हार्ट रेट तो बढ़ने वाला नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं है, बस आराम से बैठा, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स के ऊपर, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल विल बी देयर इनटू द बॉडी ऑफ थीफ, चोर के बॉडी में क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, उसका बीपी बढ़ेगा डेफिनेटली, ठीक है, उसको टेंशन, उसको भागना है, उसको रास्ता खोजना है, उसको कहीं ना कहीं तो जाकर के अपना जो है वो अपने लिए कुछ तो खोजना है, ठीक है, अपने को सेफ कर लेना है, दैट वे ही इज मच ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, उसका बीपी बढ़ा रहेगा ड्यू टू द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। और यहाँ पे डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इन केस ऑफ स्टूडेंट देयर इज अ डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, रिलैक्सेशन मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो नॉर्मली रहेगा, इसके बॉडी में जो चोर है उसके बॉडी में क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा, मतलब उसको ऐसा नहीं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ा है या जीआई का एक्टिविटी बढ़ी है या उसको कहीं पे भूख लग रही है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा उसको क्या है, एक रास्ता खोजना है, वो अपने फिक्र में, ठीक है, मतलब ये वाला एक्टिविटी कम रहेगा उसके अंदर।
भूख लगना या कुछ खाने का मन करना, या कहीं पे मैं बोलूँ कि टाइम प्लीज, ऐसा बोलेगा क्या वो चोर? बोलेगा पुलिस को टाइम प्लीज, मैं थोड़ा सा नाश्ता करके आता हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा कुछ तो लाइट स्नैक्स ले लेता हूँ, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा, ठीक है, बिकॉज देयर इज ए रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड देयर इज नो इंक्रीज इन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। लेकिन अगर हम लोग एग्जैक्टली पैरासिम्पैथेटिक सिमुलेशन की या स्टूडेंट के केस में अगर बात करते हैं, तो वहां पे क्या होगा? इंक्रीज इन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इंक्रीज इन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लीड्स टू एपेटाइट आल्सो। एपेटाइट होगा, उसको भूख लगेगी, फिर ऑनलाइन लेक्चर में बैठे बैठे उसको सारी चीजें अवेलेबल भी हो जाएगी, स्नैक्स मिल जाएंगे, सब चीजें अवेलेबल हो जाएगी, वो भी शुरू रहेगा उसका। उसका मन करेगा कुछ तो खा लूं, अभी तो चल रहा है लेक्चर, चलने दो, कुछ तो खा लिया जाए, जो भी है थोड़ा सा कुछ कहीं पे फ्री होके आया जाए, ऐसा भी हो सकता है। इंक्रीज इन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट, ब्लैडर मसल, particularly urinary bladder, relaxation of bladder muscle and constriction of bladder muscles। constriction of bladder muscle में जो यूरिन आउटपुट एक्टिविटी है वो हो स्टिमुलेशन होगा, यूरिनेशन का स्टिमुलेशन हो सकता है, उसको ऐसा लगे कि भाई एक शॉर्ट ब्रेक लेकर के जाके थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह जाके आ जाए, किसको? स्टूडेंट को। लेकिन ये चोर को नहीं लगेगा, बिकॉज देयर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ ब्लैडर स्मूथ मसल्स। कॉन्स्ट्रिक्शन अगर होता है ब्लैडर स्मूथ मसल, तो वहां पे यूरिनेशन का एक्टिविटी स्टिमुलेट होता है, और रिलैक्सेशन होता है तो स्टिमुलेट नहीं होता है। तो ये वाले एक्टिविटीज के अंदर कम रहेंगे, जैसे भूख लगना चोर के अंदर नहीं रहेगा ये, और या बीच में लघु विश्रांति जिसको हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट ब्रेक, ठीक है, तो वो इसमें नहीं रहेगा। नाउ ये जो लास्ट वाले जो एक्टिविटीज है यूटेरस, ये उतना कोरिलेट नहीं करते, बिकॉज देयर इज नो एग्जैक्टली एन अपोजिट इफेक्ट कोरिलेटेड विद द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में यूटेरस के ऊपर रिलैक्सेशन ऑफ यूटेराइन मसल होता है, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ यूटेराइन मसल, एंड particularly salivary gland में increase secretion salivation, increase salivary secretion होगा wherever there is in parasympathetic stimulation। ये best example था to correlate these both these examples or wherever there is in stimulation of parasympathetic or sympathetic stimulation। अभी हम लोग बात करेंगे ओनली सिंपैथेटिक सिस्टम की, एड्रेनर्जिक सिस्टम की, कोलिनर्जिक की या पैरासिम्पैथेटिक की अभी यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे। we are going to deal with the first topic amongst the ANS, that is drug acting on ANS, उसमें से एड्रेनर्जिक ड्रग या सिंपैथेटिक ड्रग, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट वी कॉल एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम, और जो न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर रहता है, एड्रेनालिन है, नॉरएड्रेनालिन है, एपिनेफ्रिन है, which are agonists। The examples of agonists of the neurotransmitter particularly located into the sympathetic nervous system or adrenergic nervous system are adrenaline, noradrenaline and epinephrine। ये major neurotransmitters है, that's why the system is also called as adrenergic system। Next, the drug that mimics or stimulate the adrenergic system, जो adrenergic system के activity को बढ़ाते हैं, stimulate करते हैं, और which will give the similar effect। मिमिक मतलब मिमिक्री करते हैं, इसकी मिमिक्री करेंगे wherever there is stimulation of adrenergic system। जैसे हमने बोला कि फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा था, stimulation of adrenergic system leads to the dilation of pupil। फर्स्ट जो एग्जांपल देखा था, pupil के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, dilation of pupil। तो कब होगा? stimulation of adrenergic system। या ऐसे कोई ड्रग है या ऐसे कोई न्यूरोट्रांसमीटर है जो सिमिलर इफेक्ट देते हैं, दैट इज ऑफ डायलेशन ऑफ pupils, सो दैट वी कॉल, विल गिव द सिमिलर इफेक्ट, मतलब मिमिक कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं। किसकी मिमिक्री कर रहे हैं? स्टिमुलेशन ऑफ एड्रेनर्जिक सिस्टम की मिमिक्री कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दीस आर आल्सो कॉल्ड एज एड्रेनोमिमेटिक, सिंपैथोमिमेटिक्स। ठीक है, ऐसे ड्रग जो स्टिमुलेट करेंगे एड्रेनर्जिक सिस्टम को या सिंपैथेटिक सिस्टम को, या प्रोड्यूस करेंगे सेम इफेक्ट या सिमिलर इफेक्ट एज लाइक दैट ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ एड्रेनर्जिक सिस्टम, सो सच ड्रग्स आर कॉल्ड एज adrenomimetics or also called as sympathomimetics or also called as adrenergic agonist। agonist मतलब एक्टिविटी को जो बढ़ाते हैं। That's why we are going to revise the definition। The drug that mimics or that stimulate the adrenergic system are called as adrenergic drugs। इसको यहाँ पे synonyms आ रहे हैं, देखो, adrenergic drugs, or they are also called as adrenergic agonists, or they are called as sympathomimetics, mimicry कर रहे हैं इसलिए sympathomimetics, or they are also called as adrenomimetics। मतलब ऐसे चार टर्म यहाँ पे आ रहे हैं जो कि एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन को या ड्रग विच स्टिमुलेट द एड्रेनर्जिक सिस्टम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो ड्रग रहेंगे जो मिमिक करेंगे या स्टिमुलेट करेंगे एड्रेनर्जिक सिस्टम को, दीज आर कॉल्ड एज एड्रेनर्जिक ड्रग्स और कॉल्ड एज एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट और आल्सो कॉल्ड एज सिंपैथोमाइमेटिक्स और एड्रेनोमाइमेटिक्स। ये सारे सिनोनिम्स यूज किए जाएंगे फॉर दीज ड्रग्स। और उसी के एग्जैक्टली अपोजिट, द ड्रग्स that block or prevent the response of adrenergic system, जो स्टिमुलेट करते हैं उसके एग्जैक्टली अपोजिट, जो ब्लॉक करेंगे
the drug that blocks or prevent the response of adrenergic system are called as adrenergic blockers, or also called as sympatholytics, or also called as adrenolytics, or also called as adrenergic antagonist. समझ में आ रहा है? ये जो ऊपर वाले जो हमने टर्म देखे हैं फॉर द स्टिमुलेशन के, उसी से एग्जैक्टली अपोजिट रहेंगे these blocking agents, adrenergic blocking agents. ठीक है, adrenergic blockers, adrenergic stimulant are called as adrenergic drugs, और जो ब्लॉक करते हैं उसको adrenergic blockers बोला जाएगा. जो agonist रहेंगे adrenergic system के, that is called as adrenergic agonist. And second जो हमने definition देखा, adrenergic antagonist, which will block the action, inhibit the effect, inhibit the stimulation, are called as adrenergic antagonist. वैसे हमने कुछ टर्म देखे, दैट इज सिम्पैथोमाइमेटिक्स. ऊपर जो देखा सिम्पैथोमाइमेटिक्स, तो उसी से रिलेटेड टर्म यहाँ पे क्या रहेगा, सिम्पैथोलाइटिक्स. Sympatholytic, which will inhibit the stimulation, which will not mimic the effect. ठीक है, जो inhibit करेंगे, mimic नहीं करेंगे, these called as sympatholytics. And adrenolytics, जैसे बोला adrenomimetics, तो adrenolytics. ऐसे exactly opposite term यहाँ पे form हो गए, that is of the drug which stimulate or which block the effect, or which will prevent the response, or which will prevent the stimulation. इसके हिसाब से ये दोनों ड्रग के हमने यहाँ पे कोरिलेट देख लिया है, कोरिलेशन देख लिया है. Both the categories of drug we have to see, that is the adrenergic drug and adrenergic blocking agents. तो पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट, चलो ये इसके पहले भी हम लोग देखेंगे various types of receptors. Adrenergic receptor, मतलब हम लोग यहाँ पे only sympathetic system की बात कर रहे हैं. कोलिनर्जिक सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे. वी आर गोइंग टू डील ओनली विद द एड्रेनर्जिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम. ठीक है, उसी का हमने यहाँ पे अभी ड्रग्स भी देखे, दैट इज व्हिच विल स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक सिस्टम, व्हिच विल ब्लॉक द सिंपैथेटिक सिस्टम. तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिसेप्टर्स. द रिसेप्टर, वेरियस रिसेप्टर प्रेजेंट इन दिस एड्रेनर्जिक सिस्टम और द रिसेप्टर एसोसिएटेड विद दिस एड्रेनर्जिक सिस्टम. तो ये रहेगा फर्स्ट अल्फा 1 रिसेप्टर, व्हिच इज लोकेटेड ऑन द ब्लड वेसल्स, आईज एंड इंटेस्टाइन. समझ में? अल्फा 1 रिसेप्टर व्हिच इज अ मेजर रिसेप्टर. नॉर्मली दो टाइप के रिसेप्टर रहेंगे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा. अल्फा में दो टाइप है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2. बीटा में तीन टाइप है, दैट इज बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3. समझ में? मेजरली दीज अल्फा एंड बीटा आर द टाइप्स ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स. ठीक है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के ये टाइप है अल्फा एंड बीटा. फिर उसके सब टाइप्स रहेंगे. अल्फा के दो सब टाइप्स है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2. बीटा के दो सब टाइप्स है, बीटा 1, बीटा 2, थ्री सब टाइप्स है, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3. तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट अल्फा 1 की बात करें, which is located on blood vessels, eyes and intestine. फिर accordingly stimulation of these adrenergic receptor leads to the effect, particular effect मिलेगा जहाँ पे sympathetic stimulation होता है. ठीक है, next ये तो PNS, चलो ठीक है. अल्फा 2 is not a major receptor. Next बीटा 1. बीटा 1 is located on the heart, kidney. Beta 2 is located on bronchi, blood vessels, uterus, urinary tract, and then again eyes. Beta 2. Next beta 3 is located on adipose tissues. Beta 3 रिसेप्टर है वो adipose tissue, जहाँ पे फैट स्टोरेज वाला जो साइट है वहां पर बीटा 3 रिसेप्टर लोकेट होता है और वहां पे उसका पर्टिकुलरली इफेक्ट है. जैसे फैट एडिपोज टिश्यूज के ऊपर बीटा 3 रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो उसको अगर हमने स्टिमुलेट किया तो एडिपोज टिश्यूज में जो भी फैट्स रहेंगे उसका एक्चुअली ब्रेकडाउन हो जाता है. लिपोलाइसिस विल बी देयर. लिपोलाइसिस हो जाता है. पर्टिकुलरली ये जो यूजफुल रहेगा इन केस ऑफ obesity, to treat the obesity. Beta 3 receptor stimulation of beta 3 adrenergic receptor is useful for the relieving from obesity. जो ओबेस पर्सन है उनको ओबेसिटी या वेट लॉस करना है, तो इन दैट केस दे हैव टू स्टिमुलेट द बीटा 3 रिसेप्टर, जो कि एडिपोज टिश्यू पे प्रेजेंट होता है, जहां पे फैट स्टोरेज होते हैं, स्टोर होते हैं, और वो फैट्स अगर लिपोलाइसिस के थ्रू ब्रेकडाउन हो जाए तो डेफिनेटली फैट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस भी हो जाएगा, ओबेसिटी भी कंट्रोल हो सकती है. तो बाय ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, दैट इज ऑफ बीटा 3 रिसेप्टर व्हिच इज लोकेटेड ऑन adipose tissues. Next, we'll see what is the exactly effect on the stimulation of alpha 1 receptor depending on the location. जहां पे अभी हमने जस्ट लोकेशन देखा कि अल्फा 1 रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट होता है, अकॉर्डिंगली दे विल प्रोड्यूस द इफेक्ट. अल्फा 1 के साथ अगर एगोनिस्ट इंटरेक्ट होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ अगर एड्रेनालिन जो कि एगोनिस्ट है वो अगर इंटरेक्ट होगा तो विल स्टिमुलेट, और वही अल्फा 1 के साथ अगर एंटागोनिस्ट इंटरेक्ट करता है तो दैट विल ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर. या जो भी इफेक्ट रहेगा अल्फा 1 receptor से related depending on the location of this alpha 1 receptor,
तो उसको स्टिमुलेट करेंगे या ब्लॉक करेंगे, डिपेंड करता है कि अगोनिस्ट इंटरैक्ट कर रहा है या एंटागोनिस्ट इंटरैक्ट कर रहा है। तो मैं ये अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का कांसेप्ट तो आपको पता है, आई नो वेरी वेल। तो हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर। तो इसमें देखिए कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ दी, ये एक्चुअली हमने समराइज फॉर्म में भी देख चुके हैं हम लोग के क्या होता है एग्जैक्टली, वेयर देयर इज अ स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, तो पीपल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, जीआईटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसके बाद में ब्लैडर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये हम ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में देख चुके हैं। तो उसी से सिमिलर इफेक्ट रहेगा wherever there is a stimulation of alpha 1 receptor. Constriction of blood vessels will be there. Constriction of blood vessels मतलब बीपी बढ़ाएगा to maintain the blood pressure in a acute hypertensive state. जहां पे अगर लो बीपी हो गया तो इन दैट केस क्या होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर के मतलब एड्रेनर्जिक सिस्टम या सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होती है और अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन होगा एंड देयर इज अ से constriction of blood vessels in order to increase the blood pressure to the normal one. कब होगा ये, अगर बीपी लो हो रहा है तो ये मतलब बॉडी जो है एएनएस कंट्रोल करेगा। हमारा जो नॉर्मल पर्सन में, एक्सक्यूज मी, वी आर सेइंग दैट दिस एएनएस विल कंट्रोल दी विसरल ऑर्गन्स, जैसे ब्लड प्रेशर है वो एएनएस कंट्रोल करता है। तो कैसे मतलब कंट्रोल मतलब नॉर्मल रेंज में मेंटेन करेगा इन नॉर्मल पर्सन, इज नॉट गॉट सफर्ड फ्रॉम हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। नॉर्मल पर्सन में बीपी नॉर्मल होता है, उसका रीजन ये है कि दैट अगर सपोज अगर लो बीपी हुआ इन केस नॉर्मल पर्सन, तो एड्रेनर्जिक सिस्टम क्या होगा, स्टिमुलेट होगा और एड्रेनर्जिक सिस्टम स्टिमुलेट होने के बाद वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की वजह से बीपी जो है वो थोड़ा बढ़ेगा टू द नॉर्मल वन। तो दैट्स व्हाई हाइपोटेंशन होने नहीं देगा। ये जो है स्टिमुलेशन ऑफ द अल्फा 1 रिसेप्टर will maintain the blood pressure to the normal one, या ये इंक्रीज करेगा डेफिनेटली, ठीक है। constriction of the radial muscles lead to mydriatic effect, मतलब डायलेशन ऑफ दी pupils will be there। यहाँ पे आप देख सकते हो कि constriction of pupils और डायलेशन ऑफ pupils में क्या इफेक्ट होता है। फर्स्ट जो होता है वो ये आपको पता है, आपने ये स्टडी किया है पीएनटी में, डायलेशन ऑफ pupils, contraction of the radial muscles lead to a dilation of pupils, pupil size बढ़ जाएगा और the relaxation of these radial muscles, you know very well, there is a say decrease in the pupil size that we call constriction of pupils. तो mydriatic effect मिल रहा है मतलब there is a say dilation of pupils। तो यहाँ पे alpha 1 stimulation की वजह से alpha 1 is located on the eyes that leads to a stimulation wherever there is an interaction of the agonist with this alpha 1 receptor and that leads to the dilation of pupils that we call mydriatic effect, ठीक है। ये होगा। नेक्स्ट, इनहिबिशन ऑफ द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द इंटेस्टिनल मसल्स। नेक्स्ट, स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर प्री सिनेप्टिक प्रिवेंट द रिलैक्सेशन ऑफ द नॉर। चलो ये हम लोग देखेंगे। अल्फा 2 का ज्यादा इफेक्ट हम लोग यहाँ पे कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी हम लोग बात कर रहे हैं बीटा 1 रिसेप्टर, मतलब कि बीटा टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। बीटा 1 लोकेटेड ऑन द हार्ट, तो कार्डियक स्टिमुलेशन का काम करेगा, हेंस विल इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो जहां पे हार्ट अटैक हो रहा है या जहां पे हार्ट ब्लॉक हो रहा है या हार्ट की एक्टिविटी कम हो रही है, तो वहां पे एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन की वजह से या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से, पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेटेड बाय द बीटा 1 रिसेप्टर, इट लीड्स टू इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट की एक्टिविटी बढ़ाएगा तो हार्ट को ब्लॉक होने से रोकेगा। नेक्स्ट, स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर व्हिच इज लोकेटेड ऑन द ब्रोंकाई, सो दैट लीड्स टू अ ब्रोंको डायलेशन। क्या करेगा वो, ब्रोंको डायलेशन करेगा। हेंस are useful for the treatment of bronchial asthma या bronchial spasm। तो bronchial spasm या bronchial asthma में normally there is a say broncho constriction हो जाता है, कफ इंड्यूस होता है, broncho constriction होता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारे पास क्या सिस्टम है, there is a stimulation of sympathetic system interacting with the beta 2 receptor which is located on the bronchi and that lead to a bronchodilation। क्या करेगा वो, ब्रोंको का डायलेशन करेगा, ब्रोंकाई का डायलेशन करेगा, that leads to a ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा, या वो फिर कफ को इंड्यूस होने नहीं देगा या रिलैक्स कर देगा। समझ में आ रहा है, ब्रोंकोस्पाज्म उसको भी ट्रीट कर देगा बाय ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट। वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स का भी डायलेशन, पर्टिकुलरली ब्लड वेसल्स का डायलेशन कर सकता है, दैट डिपेंड्स। नेक्स्ट, स्टिमुलेशन ऑफ दी बीटा 3 रिसेप्टर लीड्स टू, तो मैंने आपको बता दिया कि लिपोलाइसिस होगा बिकॉज दिस बीटा 3 रिसेप्टर इज लोकेटेड ऑन दी एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज बीटा 3 को अगर हमने स्टिमुलेट किया बाय इंटरेक्टिंग विद द अगोनिस्ट,
so that leads to lipolysis and hence it is useful for the treatment of the obesity और weight loss के लिए useful होता है. Next, the drug that produces the pharmacological effect like adrenaline or noradrenaline or which will stimulate, or the drug which bring about the stimulation of adrenergic system or adrenergic nerves are called as adrenergic drugs or sympathomimetic. ये तो हमने already definition देखा है. और is also called as adrenomimetic or adrenergic stimulant. इसके एग्जाम्पल है आइसोप्रेनालिन, फिनेलेफ्रिन, साल्बिटामोल, एफेड्रिन. Irrespective to its class, this is a general example of these adrenergic stimulant or adrenomimetic or sympathomimetic और adrenergic drugs. ये सारे के एग्जाम्पल जो है वो आइसोप्रेनालिन, फिनेलेफ्रिन, साल्बिटामोल, एफेड्रिन, ये एग्जाम्पल है जो कि स्टिमुलेट करते हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम को. Now this is the chemical classification of these adrenergic drugs. इसमें फर्स्ट एग्जांपल है एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन. बेसिकली इट इज बिलोंग टू द क्लास कैटेकोलामाइंस. Catecholamines and non-catecholamines, these are the major class of these adrenergic drugs. Adrenergic stimulant हैं, लेकिन basically that depends whether they have a catechol nucleus in their structure or they doesn't have a catechol nucleus in their structure. जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन देखा था एंटीबायोटिक्स का, जिसमें we had mentioned that the beta-lactam antibiotics and non-beta-lactam antibiotics. जिसमें beta-lactam ring present होती है that we call a beta-lactam antibiotics. जिसमें beta-lactam ring नहीं होती है, other heterocyclic ring होती है, that we had known as the non-beta-lactam antibiotics. तो उसी तरह से यहाँ पे भी रहेगा catecholamines which has a catechol nucleus and non-catecholamines which doesn't have a catechol nucleus in their structure. तो catechol containing वाले कौन से हैं? Adrenaline, noradrenaline, isoprenaline. And non-catechol nucleus containing फिर phenylethylamine वाला है with phenolic group, salbutamol, phenylephrine, without phenolic group, without phenolic hydroxy group, ephedrine, ये ड्रग्स हैं. तो हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली कैटेकोल न्यूक्लियस कैसे होता है एंड व्हेन वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दीज ड्रग्स, तो वहां पे हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली कैटेकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है. कैटेकोल न्यूक्लियस नहीं है तो फिर फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, फिनोलिक में फिनोलिक ग्रुप कंटेनिंग रहेगा या नहीं, मतलब विदाउट कंटेनिंग, विदाउट फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप. So that depends. ये आपको एग्जांपल देखने के बाद समझ में आएगा. But you should have to remember the subclass of these non-catecholamines with phenolic group, without phenolic group. इसमें containing phenyl और ethylamine या aliphatic amine, cyproheptadine it is an example. Sorry, cyclopentamine and nefazoline, imidazoline containing, जो कि imidazole heterocyclic ring रहेगा. Not exactly the catecholamine which has imidazole ring in its structure. Imidazoline derivative. We have example nafazoline. ठीक है. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एड्रेनर्जिक माइमेटिक, सिंपैथोमाइमेटिक, सिंपैथेटिक स्टिमुलेंट, कैटेकोलामाइन एंड नॉन कैटेकोलामाइंस. ठीक है. तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैटेकोलामाइंस. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द कैटेकोलामाइंस. कैटेकोलामाइंस क्या होता है? कैटेकोलामाइंस आर दी ड्रग विच, और कैटेकोलामाइंस मतलब के विच हैव द कैटेकोल न्यूक्लियस इन देयर स्ट्रक्चर. अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपको ये दिख रहा है कैटेकोल. दिस इज द कैटेकोल न्यूक्लियस. ठीक है. कैटेकोल न्यूक्लियस में मतलब नॉर्मली अगर देखा है तो बेंजीन विद OH ग्रुप अगर है, एक OH ग्रुप, तो दैट वी कॉल अ फिनॉल, दैट वी कॉल फिनॉल. लेकिन उसी के एडजेसेंट सेकंड वाला OH ग्रुप है डाइहाइड्रोक्सी, सो दैट वी कॉल कैटेकोल. इसको क्या बोला जाएगा? कैटेकोल. फिनॉल और कैटेकोल में ये डिफरेंस है कि फिनॉल में एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, लेकिन कैटेकोल के अंदर क्या रहेगा? दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे एंड डेफिनेटली इट विल बी द ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल. दिस विल बी द ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल. मतलब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दैट वी कॉल ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल एंड दैट इज द कैटेकोल अमाइन या कैटेकोल न्यूक्लियस. ठीक है. कैटेकोल अमाइंस मतलब अमाइनो ग्रुप भी रहेगा डेफिनेटली, लेकिन उसके पहले हम लोग कैटेकोल न्यूक्लियस देख रहे हैं. कैटेकोल क्या होता है? कैटेकोल इज एक्चुअली द ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल. जो आपको दिख रहा है इमेज के अंदर, ये कैटेकोल न्यूक्लियस है, और जो ड्रग के अंदर ये कैटेकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, इन एडिशन टू कैटेकोल न्यूक्लियस देयर इज अमाइनो साइड चेन, सो दिस वी कॉल कैटेकोल अमाइंस. कैटेकोल अमाइंस. नेक्स्ट, ये जो कैटेकोल अमाइंस रहेंगे जिसका एग्जांपल है एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, एफेड्रिन. तो ये जो कैटेकोल अमाइंस वाले ड्रग्स हैं जिसके अंदर कैटेकोल न्यूक्लियस होता है, दे आर नॉट ओरली एब्जॉर्ब. ठीक है. ओरली वो इफेक्टिव नहीं होते, या ओरली अगर उसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया तो इन द जीआई ट्रैक्ट कैटेकोल न्यूक्लियस इज सल्फेटेड एंड प्रिवेंटिंग इट्स एब्जॉर्प्शन. मतलब वो ओरली इफेक्टिव नहीं होते बिकॉज दे गॉट अल्टर इन देयर स्ट्रक्चर. या बोलो कि वो एसिड के प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं? वो डिग्रेड हो जाते हैं.
and because of due to the formation of this sulfated form they are not able to absorb, मतलब absorb ही नहीं होंगे तो फिर आगे चल के उसका इफेक्ट ही नहीं मिलेगा. कैटेकोलामाइंस आर डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक. डायरेक्ट एक्टिंग मतलब के जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे रिसेप्टर के साथ and they are stimulating the receptor, stimulating the effect associated with that particular receptor. डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग में ये डिफरेंस होता है कि डायरेक्टली एक्टिंग मतलब जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते विद द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूसेस द स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम वी कॉल डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक्स. और इनडायरेक्टली एक्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो विच डजंट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर, इंटरेक्ट नहीं करेंगे रिसेप्टर के साथ और रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट नहीं करेंगे, या मतलब वो फिर पैरेलली दूसरे वे से स्टिमुलेट करेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम को. So this will be the indirect acting. समझ आया difference between the direct acting and indirect acting? Direct acting, as the name itself indicating, direct acting drugs will directly interact with the receptor and stimulate the system. लेकिन indirectly acting जो ड्रग होते हैं वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते रिसेप्टर के साथ, बट दे आर प्रोड्यूसिंग द सिमिलर इफेक्ट टू द स्टिमुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम. तो इसलिए इसको बोला जाएगा सिमिलर इफेक्ट तो देंगे स्टिमुलेशन जैसा, लेकिन without interacting with the receptor we call indirectly acting drugs. तो indirectly acting sympathomimetic भी होते हैं, लेकिन ये जो कैटेकोलामाइंस रहेंगे वो डायरेक्टली मतलब कि जो इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द रिसेप्टर. अब यहाँ पे देखो नॉन कैटेकोलामाइंस की अगर हम लोग बात करते हैं, कैटेकोलामाइन जो कैटेकोल न्यूक्लियस जिसके अंदर रहेगा, नॉन कैटेकोलामाइंस व्हिच डजंट हैव अ कैटेकोल न्यूक्लियस मतलब एग्जैक्टली बेंजीन रिंग पे दो OH ग्रुप नहीं रहेंगे, बायहाइड्रोक्सी नहीं रहेगा या ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल वाला वो ग्रुप नहीं रहेगा. So what exactly will be the monophenolic derivative? तो मतलब instead of two hydroxy group एक ही hydroxy group present रहेगा, that we call monohydroxy. Sorry, excuse me. तो ये जो monophenolic derivative है, this group highest potency resides in the drug when OH group is at the meta position. इसका एग्जाम्पल है फिनिलेफ्रिन. मतलब ये जो साइड चेन आपको दिख रहा है अमाइनो साइड चेन, इसके कंपैरिजन में जो फिनिल रिंग है या बेंजीन रिंग है उसके अगर मेटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर प्रेजेंट है, सो दैट इज एक्चुअली द मोर पोटेंट या पोटेंसी उसकी ज्यादा रहेगी, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. And definitely आप ये देखो कि ये नॉन कैटेकोलामाइंस है because there is no two hydroxy group on this benzene ring. जहाँ पे दो adjacent hydroxy group अगर रहते हैं तो that we call a कैटेकोलामाइन, लेकिन यहाँ पे एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है. समझ में आ रहा है क्या? एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है ऑन बेंजीन रिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स अ फिनोलिक. देन मोनोफिनोलिक वी आर कॉलिंग मोनोफिनोलिक, क्योंकि फिनॉल में भी बेंजीन विद OH होता है, लेकिन कैटेकोल में बेंजीन विद 2 OH होता है. यहाँ पे दूसरा OH नहीं है, मतलब ये कैटेकोल नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज अ नॉन कैटेकोलामाइन. ठीक है, नॉन कैटेकोलामाइन है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें है कौन सा फिर एग्जैक्टली? ये फिनोलिक रहेगा, क्योंकि ये बेंजीन विद OH मतलब फिनॉल हम उसको बोलते हैं, ये फिनोलिक OH रहेगा. और ये जो फिनोलिक OH है इसमें अगर सपोज ये फिनोलिक OH ग्रुप में जो ये वी कैन से दैट द सेकंड अमाइनो साइड चेन इज एट द मेटा पोजीशन. अगर एक दूसरे का अगर देखा जाए कोरिलेटेड, तो बोथ आर meta position to each other. Hydroxy group is the meta position to this side chain, या side chain is the meta position to this hydroxy group. अगर ऐसा attachment है या ऐसा say for example side chain present है on the given drug, so that we call it having the highest potency. Potency उसकी रहती है. ठीक है, चलो ये तो समझ में आया कि नॉन कैटेकोलामाइन क्या होता है या मोनोफिनोलिक कैसे रहेगा. एंड देयर आल्सो डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक. ये जो ये मोनोफिनोलिक वाले होते हैं वो भी डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, जो कि डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द रिसेप्टर. नेक्स्ट, विदाउट फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसमें जो बेंजीन रिंग रहेगा उसको एक भी हाइड्रोक्सी अटैच नहीं रहेगा, दैट वी कॉल विदाउट फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप. प्रीवियस जो अभी हमने देखा मोनोफिनोलिक जिसमें एक तो रहेगा, अगर दो हाइड्रोक्सी है तो दैट वी कॉल कैटेकोलामाइंस. दो नहीं है एक है तो वी कॉल मोनोफिनोलिक, नॉन कैटेकोलामाइन. नॉन कैटेकोलामाइन उसमें भी मोनोफिनोलिक या विद फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप. और ये विदाउट फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब वो वाला जो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो भी नहीं रहेगा, ओनली बेंजीन रिंग विल बी देयर एंड अमाइनो साइड चेन वी कॉल विदाउट फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप. सो दे आर वीक अल्फा एड्रेनर्जिक ड्रग्स एंड दे आर ओरली एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन ये कौन से हैं? पोटेंट ड्रग नहीं रहे. विदाउट फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले एड्रेनर्जिक स्टिमुलेंट जो रहेंगे वो पोटेंट नहीं रहेंगे, दे आर वीक अल्फा एड्रेनर्जिक ड्रग्स
एंड बट दे आर ओरली इफेक्टिव रहेंगे बिकॉज कैटेकोल नहीं है, कैटेकोल न्यूक्लियस नहीं रहने की वजह से जो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा था कैटेकोलामाइन वाले ड्रग्स को, इसको नहीं रहेगा बिकॉज देयर इज नो कैटेकोल न्यूक्लियस नहीं है तो डिग्रेडेशन का भी सवाल नहीं आता है एंड दैट्स व्हाई दे आर ओरली इफेक्टिव, ओरली उसको हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, बट दे आर वीक अल्फा एड्रेनर्जिक ड्रग्स। इन दिस क्लास द कंपाउंड हैविंग अल्कोहलिक ग्रुप, चलो मिक्स टाइप, बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों भी होते हैं। ये आप देख सकते हो एग्जांपल जहां पे विदाउट फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप का एग्जांपल है, जहां पे बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एक भी हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, दैट वी कॉल दिस वी कॉल एक्चुअली द विदाउट फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप। नॉन कैटेकोलामाइन है उसमें भी विदाउट फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसका एग्जांपल है एफिड्रिन। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया है वो एफिड्रिन का स्ट्रक्चर है जो कि नॉन कैटेकोलामाइन है एंड विदाउट फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप। साइड वाला चेन तो है, नो प्रॉब्लम, साइड अमाइनो साइड चेन है। Now we are going to see the first drug amongst these catecholamine, that is the adrenaline. It is also called as epinephrine. इसको epinephrine भी बोला जाता है, is also called as adrenaline and it having the simple structure. ये जो structure आपको दिख रहा है, अभी इसके हम लोग specification देख लेंगे कि what are the parts of this adrenaline. Adrenaline का structure important है, simple structure कैसे draw करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन what are the parts of this structure that again you have to see. तो इसमें आप देख सकते हो जो मिडिल वाला ब्लू में बैकग्राउंड में दिया है वो बेंजीन रिंग है, विच इज वेल नोन। नेक्स्ट, टू हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट विच इंडिकेट इट इज अ कैटेकोलामाइन। दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है मतलब ये कैटेकोलामाइन है। एड्रेनालिन इज अ कैटेकोलामाइन डेरिवेटिव। कैटेकोल न्यूक्लियस है प्लस अमाइनो साइड चेन। अमाइनो साइड चेन में आप देख सकते हो कि एक ये कार्बन और ये सेकंड कार्बन, मतलब टू कार्बन कंटेनिंग विद दिस अमाइनो ग्रुप NH, और फिर NH को भी ये जो अमाइन है नाइट्रोजन है इसको भी आगे एक मिथिल ग्रुप अटैच है। समझ में आ रहा है? ये लाइन एक ड्रॉ किया है, इसका मतलब क्या, वहां पे एक मिथिल ग्रुप अटैच है। सो दिस वी कॉल अमाइनो साइड चेन। पर्पल कलर में जो आपको दिख रहा है दैट इज व्हाट इट इज एन अमाइनो साइड चेन। बेंजीन रिंग, टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, दिस वी कॉल अ कैटेकोल न्यूक्लियस एंड रिमेनिंग जो राइट साइड वाला है दैट वी कॉल अमाइनो साइड चेन। ठीक है, अमाइनो साइड चेन। So these are the part or a component of these adrenaline. ठीक है, अभी अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर सिंपल फॉर्म में, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसे रहेगा, तो उसके लिए हम लोग विल टेक द हेल्प ऑफ दिस स्मार्ट नोट। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या है। यहां से जो है वो साइड चेन अटैच है।
So this will be the simple way to draw the structure of adrenaline. ठीक है, ये सिंपल वे हो गया टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एड्रेनालिन. अभी अगर इसमें देखा जाए एज पर एज द केमिकल नेम इज कंसर्न, कैटेकोल न्यूक्लियस वगैरह है वो चलो छोड़ दो, नो प्रॉब्लम. अब इसमें हमको जो पैरेंट न्यूक्लियस लेना है दैट विल बी द इथेनॉल. कौन सा रहेगा? इथेनॉल. इथेनॉल मतलब ये वाला, यहां से 2 कार्बन कंटेनिंग जो रहेगा यहां तक, दिस इज एक्चुअली द पैरेंट न्यूक्लियस इन गिवन स्ट्रक्चर दैट वी कॉल इथेनॉल. ठीक है, इथेनॉल. और इथेनॉल को अगर हम लोग नंबरिंग देंगे तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है इथेनॉल के अंदर? दैट इज द हाइड्रोक्सी ग्रुप. तो विल गिव द नंबरिंग टू दिस इथेनॉल दैट विच कार्बन. चलो ठीक है, ये इथेनॉल के अंदर 2 कार्बन होते हैं, तो कौन से कार्बन को पोजीशन 1 दिया जाए? इथेनॉल पैरेंट न्यूक्लियस ले रहे हैं, तो रिमेनिंग इज द सब्स्टिट्यूएंट है. राइट साइड में जो NH3 है ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में फिनिल रिंग पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा. जितना हाईलाइट आपको करके दिखाया है दैट इज ओनली दी parent nucleus in given structure that we call ethanol. Simple. 2 carbon containing alcohol that we call ethanol. So this is the first number or first carbon and this is the second carbon. समझ में आ रहा है? 1 और 2 हमने पोजीशन दिया है कार्बन को. ये 1 क्यों दिया है इसको पोजीशन 1? बिकॉज टू दिस कार्बन द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच. OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है इथेनॉल के अंदर, दैट इज व्हाई वी हैड गिवन पोजीशन 1 टू दिस कार्बन. एंड सेकंड पोजीशन डेफिनेटली सेकंड कार्बन को जो जाएगा, डेफिनेटली कंफ्यूजन क्या था कि पोजीशन 1 किसको जाएगा? पोजीशन 1 किसको जाएगा? इथेनॉल में जो कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच है. व्हिच इज द फंक्शनल ग्रुप इन इथेनॉल? दैट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप. तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो कार्बन को अटैच है उसको हम लोग पोजीशन 1 देंगे. ऑब्वियसली सेकंड कार्बन विल गेट द सेकंड पोजीशन. ये हो गया नंबरिंग, सिलेक्टिंग अ पैरेंट न्यूक्लियस इन गिवन स्ट्रक्चर एंड गिविंग द नंबरिंग टू दिस पैरेंट न्यूक्लियस. ठीक है, इथेनॉल का सिलेक्ट किया, इथेनॉल पैरेंट न्यूक्लियस, और उसको नंबरिंग दे दिया. Now we'll see what about the substituents. Substituents अगर है so remaining जो रहेगा वो substituents रहेगा. तो substituent की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड पोजीशन पे क्या है? सेकंड पोजीशन पे है मिथिल अमाइनो. दिस वी कॉल मिथिल अमाइनो. ये वाला जो ग्रुप है दिस वी कॉल मिथिल अमाइनो which is at the second position. और फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच है? फर्स्ट पोजीशन पे है the complicated substituent. फर्स्ट पोजीशन पे ये वाला complicated substituent अटैच है, ये वाला कंप्लीट. ठीक है, complicated substituent attached on the first position of ethanol. So we'll give the, अगर ठीक है complicated substituent तो हम लोग क्या करते हैं उसको अलग से नंबरिंग देते हैं. नंबरिंग देते वक्त में क्या करना है? We have to count the numbering such as this is the 1 carbon, this is the second carbon, this is the third carbon on benzene ring, and this is the 4th position of the benzene phenyl group or benzene ring. This is the 5th one. ऐसे चलो 5 तक important है, हम लोग दे देंगे 5 या 6, चलो 6 भी कंप्लीट कर देंगे. This is the way to give the separate numbering to these complicated substituent which is attached on the first position of ethanol. Now we'll see what will be the name of this complicated substituent. इसका नाम क्या रहेगा? This will be the 3,4-dihydroxyphenyl. Isn't it? Name क्या रहेगा? जैसे कि इसका complete name when we are going to see the complete name of these this adrenaline. So how will write these name? So we'll write on a first position. First में complicated है substituent, that is 3,4 dihydroxy ब्रैकेट कंप्लीट. उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे रहेगा दैट इज 2 मिथिल अमाइनो and at the end we'll write the name of parent nucleus comma write the parent nucleus that is ethanol. समझ में है कैसे हमने इसको केमिकल नेम दिया है? वी हैड सिलेक्टेड इथेनॉल एज अ पैरेंट न्यूक्लियस, फिर उसको नंबरिंग दिया 1 2, फिर 1 पोजीशन पे लेफ्ट साइड वाला जो है वो
substituent attached रहेगा, that is actually the 3,4 dihydroxyphenyl. फिनिल है ना, फिनिल के फिर 3,4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, that's why we had written as 3,4 dihydroxyphenyl. और सेकंड पोजीशन पे कौन सा है सब्स्टिट्यूएंट? मिथिल अमाइनो. सेकंड पोजीशन पे कौन सा है? मिथिल अमाइनो. So and at the end we have to write the name of parent nucleus, that is ethanol. So in bracket जो लिखा वो complicated substituent है और outside the bracket लिखा वो simple substituent. 2-methylamino is a simple substituent. या second position पे methylamino is a simple substituent. And first position पे complicated है, इसलिए उसका नाम आ गया in the bracket 3,4 dihydroxyphenyl. तो इस तरह से ये जो रहेगा, this will be the chemical name for the given drug, that is adrenaline. Adrenaline is also called as the epinephrine. यही हमने दिया था केमिकल नेम. वन पोजीशन पे 3,4 डाइहाइड्रोक्सीफिनिल, सेकंड पोजीशन पे मिथिल अमाइनो एंड इथेनॉल. दिस इज जैसे सिंपल वाला स्ट्रक्चर भी मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया है. दिस इज अ सिंपल वे टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एड्रेनालिन. ये आप ड्रॉ करके देख सकते हो या यू कैन सी दिस वन आल्सो. नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे, we'll see the next physical properties of these and uses of these adrenaline. ये अभी हम लोग ड्रग स्टार्ट कर दिया. अभी तक हमने जो देखा था वो इंट्रोडक्शन था एएनएस का, फिर उसके बाद में हमने देखा एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन. देन वी हैड सी द क्लासिफिकेशन, कैटेकोलामाइन, नॉन कैटेकोलामाइंस. नॉन कैटेकोलामाइंस में फिर विद फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप, विदाउट फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप. उसके बाद डायरेक्टली हमने स्टार्ट किया कैटेकोलामाइंस. कैटेकोलामाइन में फर्स्ट एग्जांपल अभी हमने देखा एड्रेनालिन, और इज आल्सो कॉल्ड एपिनेफ्रिन, ऑफ व्हिच द स्ट्रक्चर अगेन इंपॉर्टेंट वन. उसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होता है, एक्चुअली है एज पर योर सिलेबस. एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम ऑफ दिस एड्रेनालिन. So now we are moving toward the next one, that is the properties, physical properties. It is a white, creamy white microcrystalline powder and which is actually the granule form में रहेगा. And next one, that is it is odorless and has a bitter taste, slight bitter taste. It is very slightly soluble in water and practically insoluble in alcohol. It is readily soluble in solutions of mineral acids such as HCl है, H2SO4 एसिड के और अल्कली के सॉल्यूशन में वो इजीली सोल्युबलाइज हो जाता है. एंड इट इज लियोरोटरी. लियोरोटरी क्यों? क्योंकि उसके अंदर कायरल कार्बन रहेगा. अभी वो कायरल कार्बन आप फाइंड आउट करोगे कौन सा रहेगा, बिकॉज द कायरल कार्बन इज असिमेट्रिक कार्बन, व्हिच इज कायरल कार्बन मतलब असिमेट्रिक कार्बन. चलो मैं आपको बता देता हूँ असिमेट्रिक कार्बन कौन सा रहेगा इन गिवन स्ट्रक्चर एड्रेनालिन, सो दैट विल बी अ लियोरोटरी. तो इसमें से अमंग दिस स्ट्रक्चर कोई एक कार्बन हो जिसको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो. ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट द केमिकल नेम. तो मैं आपको बता जा रहा हूं कि व्हाट एग्जैक्टली दी which one is a chiral carbon, or we can say that the asymmetric carbon in given structure of these adrenaline. adrenaline के given structure में कौन सा chiral carbon है? chiral carbon मतलब जो कि स्टार मार्क से डिनोट किया जाएगा. now this is the first carbon which is denoted by the star mark and which is the chiral carbon या asymmetric carbon है ये वाला first carbon. ऐसा क्यों बोल रहे हैं? because to this carbon 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच. कौन कौन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं? ये वाला फर्स्ट ग्रुप हो गया जो अटैच है, जो कि अलग ग्रुप रहेगा. 4 डिफरेंट ग्रुप्स में फर्स्ट ये ग्रुप हो गया. दूसरा OH ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप है जो अलग है, डिफरेंट है. थर्ड वाला हाइड्रोजन है. एंड फोर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये यहां से यहां तक के जो कंप्लीट है, दिस इज द फोर्थ ग्रुप अटैच टू दिस कार्बन. एंड दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज असिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, अलग अलग बैकग्राउंड में बता दिया है कि कौन कौन से अलग अलग ग्रुप है. ब्लू बैकग्राउंड में ये ग्रुप है, रेड बैकग्राउंड में हाइड्रोक्सी है, ग्रीन में हाइड्रोजन है, और पर्पल में ये वाला मिथिल अमाइनो और कार्बन के साथ वाला ये वाला, इट इज द फोर्थ ग्रुप. तो इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है. इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव है तो कौन सा है? लियो रोटरी फॉर्म इसका रहेगा. समझ में आया? दिस विल बी द लियो रोटरी फॉर्म, या दिस adrenaline is optically active and it's Leo form. It gives the emerald green color with the FeCl3 solution. Stability storage condition में है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है rapidly when exposed to the air. That's why we have to store in proper container या protected from air oxygen से protect करके रखना है. Darkens when exposed to the light and it should be stored in tightly closed light resistance container. ये कॉमन भी आया है, अनकॉमन भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आए हैं. यूजेस अगर देखा है तो रिलीव द ब्रोंकाई, it relieves the bronchial spasm in acute asthma. मतलब कि ये actually bronchodilation करते हैं. That is why they are used in the treatment of asthma. Adrenaline can be used in the treatment of asthma because of due to its bronchodilatory effect, which will stimulate the sympathetic system by interacting with the
बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन ब्रोंकाई, तो वहां पे इंटरेक्ट करके एड्रेनालिन इज अ मिक्स अगोनिस्ट। एड्रेनालिन जो है वो डायरेक्टली एक्टिंग अगोनिस्ट है और मिक्स अगोनिस्ट है, विच कैन इंटरेक्ट विद द अल्फा रिसेप्टर एज वेल एज द बीटा रिसेप्टर, and that is interacting when it is going to be interact with the beta receptor, particularly beta 2 receptor present on a bronchi, that leads to a bronchodilation, और bronchodilation अगर होता है तो अस्थमा में उसका यूज होता है, या wherever there is an acute asthma जहाँ पे bronchospasm है या bronchoconstriction है, तो by this adrenaline there is a bronchodilation, broncho को dilation करेगा और अस्थमा का ट्रीटमेंट में वो यूज होगा, या which relieves the attack of asthma, which prevent the attack of asthma. Next, it can be treated to prevent the heart block also. जैसे कि if you are talking about beta 1 receptor, the beta 1 receptor is located on the heart, and these adrenaline will interact with the beta 1 receptor and increase the activity of the heart, and that can be treated the heart block, or that can prevent the heart block. कार्डियक अरेस्ट होने से बचाया जा सकता है, ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग भी हो सकता है. नेक्स्ट, टू ट्रीट द एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन सच एज रिनिटिस है, अदर हे फीवर है, या हम लोग भी कैन से दैट जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी वाले रिस्पॉन्सेज वगैरह, उसको भी ट्रीट करने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट, टू कंट्रोल द सुपरफिशियल हीमोरेज ऑफ द नोज एंड थ्रोट. तो ये क्यों होता है, जैसे कि वैसो डायलेट करता है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से या वैसो डायलेशन की वजह से नॉर्मली हो सकता है ब्लीडिंग, तो उसको भी ट्रीट करेगा. एड्रेनालिन टार्टारेट इंजेक्शन, ये फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है ऑफ एड्रेनालिन, आई ड्रॉप्स, सॉल्यूशन, एड्रेनालिन एंड एट्रोपिन स्प्रे, brand names such as Inhalant, Medicream, these are the brand. Next, noradrenaline है, noradrenaline. अब ये noradrenaline की अगर हम लोग बात करें, what is the difference between adrenaline and noradrenaline? Just we had seen the structure of adrenaline. तो adrenaline का जो structure है और noradrenaline, इसमें difference ये है कि जो अमाइनो, मिथिल अमाइनो था या जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एक मिथिल ग्रुप था, वो नहीं रहेगा. Lack of methyl group. नॉर का मतलब यही होता है कि no R, no methyl group, या लैक ऑफ मिथिल ग्रुप, ये एक मिथिल ग्रुप का डिफरेंस रहेगा. तो एज वी कैन सी, जस्ट वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ एड्रेनालिन, तो इसमें जो लाइक आप देख सकते हो कि जो ये अमाइनो के ऊपर जो मिथिल ग्रुप है, दिस वन वी आर टॉकिंग अबाउट मिथिल ग्रुप, ठीक है. एड्रेनालिन के अंदर द अमाइनो ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड विद द मिथिल ग्रुप. अगर फॉर एग्जांपल ये मिथिल ग्रुप नहीं है, so this we call noradrenaline. इसको अगर एड्रेनालिन को अगर हमको noradrenaline कन्वर्ट करना है, NOR, I am going to write NOR, noradrenaline, तो क्या चेंजेस करना पड़ेगा एड्रेनालिन में? नो R, एक मिथिल ग्रुप कम करना पड़ेगा, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल वी विल रिमूव दिस मिथिल ग्रुप, मिथिल ग्रुप को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे. और अगर सपोज मिथिल ग्रुप वहां पे रिमूव हो जाता है, तो देयर इज डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट देयर इज अ से प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ओवर देयर, मतलब इंस्टेड ऑफ NHCH3 देयर विल बी NH2, क्या हो जाएगा, NH2. So that we call noradrenaline. तो अगर आपको एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर पता है, तो डेफिनेटली यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ noradrenaline. सिंपल है. एक क्या डिफरेंस है कि वी हैव टू रिमूव द मिथिल ग्रुप, या मिथिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहेगा कहां पर, अमाइनो ग्रुप पे, तो जैसे प्राइमरी अमाइनो NH2 है, और सब्स्टिट्यूटेड अमाइनो है, तो दैट इज कॉल्ड एज वी कॉलिंग एड्रेनालिन. सो दैट इज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द एड्रेनालिन एंड noradrenaline. प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन जो है एड्रेनालिन और एड्रेनालिन के सेम रहेंगे, यूजेस भी सेम रहेंगे. इट इज आल्सो यूज्ड इन एक्यूट हाइपोटेंसिव स्टेट, दैट इज टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर टू द नॉर्मल वन, बिकॉज इट कैन कॉजेज द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा. इट विल बी यूजफुल इन द एक्यूट हाइपोटेंसिव स्टेट. लो बीपी अगर हो जाए तो इन दैट केस इट इज इफेक्टिव वन. नेक्स्ट, noradrenaline injection and noradrenaline solution, ये उसके formulations अवेलेबल है. ब्रांड नेम such as Leofed, ब्रांड नेम such as Leofed. तो नेक्स्ट ड्रग अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, which is the last among these adrenergic drug, that is the isoprenaline. isoprenaline, अभी isoprenaline जैसे अभी हमने देखा डिफरेंस बिटवीन दी एड्रेनालिन और noradrenaline, तो आइसोप्रेनालिन और एड्रेनालिन में क्या डिफरेंस रहेगा? जस्ट द डिफरेंस इज दैट इंस्टेड ऑफ मिथिल ग्रुप देयर इज अ से आइसोप्रोपिल ग्रुप. अमाइनो के ऊपर, अमाइनो साइड चेन के अंदर मिथिल ग्रुप के बजाय क्या रहेगा? आइसोप्रोपिल ग्रुप रहेगा, ये वाला ग्रुप. यू कैन सी, समझ में आ रहा है? आइसोप्रोपिल ग्रुप रहेगा इंस्टेड ऑफ मिथिल ग्रुप इन केस ऑफ आइसोप्रेनालिन. आइसोप्रोपिल है इसलिए इसका नाम आ गया आइसोप्रेनालिन, और आल्सो कॉल्ड एज आइसोप्रोटेरिनॉल, ठीक है. आइसोप्रोटेरिनॉल और आइसोप्रेनालिन,
सिमिलर जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो सेम है एज लाइक दैट ऑफ दी एड्रेनालिन एंड दिस इज अगेन द कैटेकोलामाइन। जैसे हमने नॉर एड्रेनालिन बोला वो भी कैटेकोलामाइन है, एड्रेनालिन वो भी कैटेकोलामाइन है, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोप्रेनालिन, ये भी कैटेकोलामाइन है बिकॉज यू कैन सी द कैटेकोल न्यूक्लियस इन इट्स स्ट्रक्चर, जस्ट द चेंजेस इन द अमाइनो साइड चेन इज दैट इंस्टेड ऑफ मेथिल ग्रुप देयर इज द प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपिल ग्रुप। ठीक है, आइसोप्रोपिल आ गया, दैट्स व्हाई आइसोप्रेनालिन। आइसोप्रोपिल नहीं है, ओनली मिथिल है, वी कॉल एड्रेनालिन। मिथिल नहीं है, वी कॉल नॉर एड्रेनालिन। इस हिसाब से इसका फिर केमिकल नेम भी रहेगा। इथेनॉल इज अ पैरेंट न्यूक्लियस सेम इन दिस आल्सो। इथेनॉल को नंबरिंग अगर दे तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, और सेकंड कार्बन के ऊपर क्या है, आइसोप्रोपिल अमाइनो, और फर्स्ट कार्बन के ऊपर सेम यही है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है जैसे कि एड्रेनालिन में होता था, दैट इज 3,4 डाइहाइड्रोक्सीफिनिल on first position, and on second position there is a isopropyl amino. So by the way, the chemical name of these isoprenaline will be 1,3,4 dihydroxyphenyl, 2 position pe isopropyl amino, ethanol is a parent nucleus in given structure isoprenaline. This is आपसे दो structure important है amongst these adrenergic drugs, that is adrenaline and isoprenaline. दोनों के structure देखें, दोनों के chemical name देखें, we are going to see the property of these isoprenaline. इट्स ऑफिशियल सल्फेट मतलब आइसोप्रेनालिन सल्फेट फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, व्हिच इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, बिटर टेस्ट एंड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होगा। इट इज फ्रीली soluble in water. It gives the intense green color with a ferric chloride solution. It is mainly used for the treatment of bronchospasm, bronchial asthma, chronic bronchitis, because similar effect as like of the ये भी stimulate करता है sympathetic system को। It is in the treatment of emergency cardiotoxic shock या हार्ट अटैक में यूज किया जाएगा, ब्रैडीकार्डिया में यूज किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मतलब ओवरऑल टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट एंड द ब्रोंकाई, ब्रोंको डायलेट करेगा, हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, इसलिए एस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं एज वेल एज वेयर देयर इज एन हार्ट अटैक। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन आइसोप्रेनालिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन है, आइसोप्रेनालिन एरोजोल है फॉर इनहेलेशन फॉर द एस्थमा, स्लो रिलीज आइसोप्रेनालिन टैबलेट, ब्रांड नेम सच एज ऑटोहेलर, मतलब कि ये स्प्रे या इनहेलर के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। यू कैन सी दैट देयर विल बी फॉर्म ऑफ एरोजोल, ऑटोहेलर, न्यू इपिनिन, दिस अगेन द वन ऑफ द ब्रांड। नेक्स्ट ड्रग है फिनेलेफ्रिन, स्ट्रक्चर उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। इट इज अ हाइड्रोक्लोरिक, इसका जो है फिनेलेफ्रिन का हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट रहेगा व्हिच इज अ व्हाइट पाउडर, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, बिटर टेस्ट, फ्रीली soluble in water, और यूजेस इसके सेम रहेंगे एज लाइक दैट ऑफ द आइसोप्रेनालिन, सेम यूजेस एज लाइक दैट ऑफ द आइसोप्रेनालिन। नेक्स्ट ये भी सेम है यूजेस, स्टेबिलिटी स्टोरेज भी सेम रहेगा, एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड फॉर द फिनेलेफ्रिन। या ये आपको मैं बोलना चाहूंगा कि इट इज यूज्ड लोकली फॉर नेजल कंजेशन, ट्रीटमेंट ऑफ नेजल कंजेशन, मतलब कि जहां पे आप देखो कि कॉमन कोल्ड वाले जो फॉर्मुलेशंस रहते हैं, कॉमन कोल्ड वाले जो हम लोग टैबलेट लेते हैं इन केस ऑफ रिनिटिस या सर्दी वगैरह हो गई तो इन दैट केस हम लोग जो लेते हैं दैट विल कंटेन दी फिनेलेफ्रिन। फिनेलेफ्रिन जो है वो नेजल डीकंजेस्टेंट भी यूज होता है, मतलब इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड एंड रनिंग ऑफ नोज, या उसको हम लोग बोलते हैं रिनिटिस। नेजल कंजेशन जो है, नेजल कंजेशन, उसमें हम लोग उसको यूज कर सकते हैं एज अ नेजल डीकंजेस्टेंट, एज अ नेजल डीकंजेस्टेंट। नेक्स्ट आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ या यूज एज अ माइड्रेटिक फॉर द डायलेशन ऑफ पिपल्स के लिए यूज करेंगे, एस्थमा में यूज करेंगे, इस हिसाब से। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन आई ड्रॉप्स एंड डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर हम उसको माइड्रेटिक यूज करें, डायलेशन ऑफ पिपल्स के लिए यूज करें तो डेफिनेटली वी विल यूज यू हैव टू यूज इन द फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप्स। फिनेलेफ्रिन इंजेक्शन, Vicoril and Codilex, these are the brands, and salbutamol is the last drug amongst these adrenergic drug which is a actually इसका properties अगर देखा जाए salbutamol का asthma में most popularly use होता है salbutamol, ठीक है। Astal is a brand available for this, popular brand जो है salbutamol के लिए Astalin है, it gives reddish color, reddish orange color with a ferric chloride solution, ये इसका chemical property है। Then stability storage की बात करें तो normal ही stability storage condition है, uses as like that of the isoprenaline, फॉर्मुलेशन टैबलेट और एरोजोल इसका रहेगा एंड इंजेक्शन फॉर्म में, एंड ब्रांड नेम एस्थलिन, एज आई टोल्ड एस्थलिन इज अ पॉपुलर ब्रांड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, एस्थलिन। ब्रोंकोलैक्स अगेन देयर एंड अल्ब्यूटॉल, साल्ब्यूटामॉल का अल्ब्यूटॉल, ब्रोंकोलैक्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ सिरप या लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कफ, एंड अल्ब्यूटॉल इज अगेन अ ब्रांड, ठीक है। तो यहां तक जो है हमने देखा अभी, जस्ट वी हैड सीन द टॉपिक दैट इज एड्रेनर्जिक ड्रग्स, adrenergic agonists, adrenomimetics.
नेक्स्ट जो है ड्रग हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, दैट इज द ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस। उसमें से एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया अमंग द 4 टॉपिक। ओके